ایک تو یہ ڈیڈ بھی نا، آئے روز انہیں کہیں نہ کہیں میٹنگ میں جانا ہوتا ہے۔ کتنا کہا تھا میں نے آج کے دن رک جائیں گھر پر، مگر نہیں، میری تو کوئی بات سننی ہی نہیں ہے کسی نے۔ خیر کوئی بات نہیں، اب میں بھی کسی کی نہیں سنوں گی۔ خود کلامی کرتے وہ ہاتھ میں کلر اور برش اٹھائے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا رخ چھت کی جانب تھا جہاں وہ کینوس کو پہلے سے ریڈی کر کے رکھ کے آئی تھی کہ رات کا وقت تھا، مگر کچھ چودھویں کے چاند کی چاندنی کی وجہ سے سارا جہاں روشن تھا، اور کچھ چھت پر لگی لائٹوں کی وجہ سے۔ چھت پر رات میں بھی دن کا سما تھا۔ یہ خاص اہتمام علایا نے خود کروایا تھا، کیونکہ اسے پینٹنگ کا شوق تھا، جنون کی حد تک۔ پہلے پہل تو وہ پینٹنگ صرف شوق پورا کرنے کے لیے کیا کرتی تھی، مگر اب اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے بھی وہ پینٹنگ کا سہارا لینے لگی تھی۔ اسی لیے اس نے چھت پر ہی سارا اہتمام کروا رکھا تھا، کیونکہ کھلے آسمان تلے پینٹنگ کا الگ ہی مزہ تھا۔ لمبے گھنے سنہری گیسوؤں کو جو اس کے پشت پر بکھرے پڑے تھے سمیٹ کر اس نے جوڑے کی شکل میں باندھا، اور پھر ارد گرد سے بے نیاز وہ پوری دل جمی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور ایسی مصروف ہوئی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ جب وہ ایک اعلیٰ شاہکار بنا کر فارغ ہوئی تو 12:30 بج رہے تھے۔ اس نے سامان سمیٹا اور نیچے اتر آئی۔ سارا سامان اسٹور روم میں رکھتے وہ کمرے میں داخل ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے بری طرح چیخ پڑی، ڈاکو! ڈاکو! وہ اپنے کمرے میں کسی کا سایہ دیکھ چلائی تھی، جس کے ہاتھ میں گن بھی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، البتہ گیلری میں جلتے بلب کی روشنی گلاس وال سے اندر داخل ہوتے کمرے کی تاریکی کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چپ کرو ایڈیٹ لڑکی! اچانک وہ ڈاکو لائٹ کھولتے اس کے سر پر بندوق تانے غرایا تو وہ سانس روکے سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ الماری کے نیچے والے خانے میں میرے سونے کا زیور ہے، وہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ وہ سہمے لہجے میں بولی تو ماسک لگائے حنزلہ درانی کو اس کی عقل پر شبہ ہوا تھا۔ ایسے میں تو لوگ قیمتی چیزوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ تھی کہ خود ہی قیمتی چیزوں کا پتہ دے رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی پاگل تھی؟ مجھے زیور نہیں، تمہاری جان چاہیے، وہ اگلے لمحے بولا۔ تو علایا کی آنکھوں میں خوف اترا۔ اسے لگا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ نن نہیں پلیز، ایسا مت کرو، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، علایا کپکپاتے لہجے میں بولی تھی، مگر حنزلہ درانی پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو پلیز میری بات سن لو، میرے ڈیڈ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ تمہیں بہت سارے پیسے دیں گے، جتنے تم کہو گے، پر پلیز مجھے چھوڑ دو۔ علایا نے ایک مرتبہ پھر سے التجائیہ لہجے میں کہتے اس کی منتیں کی، جبکہ حنزلہ درانی کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے علایا کی کنپٹی پر بندوق رکھی۔ نہیں! بندوق کا زور محسوس کرتے اگلے ہی لمحے وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نازک چڑیا کو اغوا کرنے مجھے بھیجا گیا ہے؟ اس نے علایا کے بے ہوش وجود کو دیکھتے حیرت سے سوچا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، گول مٹول چہرہ، بھرے بھرے گال، تیکھی ناک، سرخی چھلکاتے گلابی لب، گداز پلکیں۔ قد کاٹ میں بھی وہ ٹھیک ہی تھی۔ حنزلہ درانی لاشعوری میں کئی لمحوں تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ اسی کے باہوں میں اس کے بے حد نزدیک تھی۔ اس کا شفاف چہرہ حنزلہ درانی کو بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ مزید بہک کر اس کے قریب ہوتا تب اس کے فون کی وائبریشن اسے حال میں کھینچ لائی تھی۔ کال اس کے باس کی تھی۔ اس نے باہوں میں پڑی بے ہوش لڑکی کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے کال اگنور کر دی تھی۔ موبائل جیب میں رکھتے وہ اس لڑکی کو لیے آگے بڑھا اور اسے بیڈ پر چھوڑا، اور خود کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ اچھا ہے بے ہوش ہو گئی، اب اس کو لے جانا آسان ہوگا۔ اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ حنزلہ درانی نے خود کلامی کی اور دروازے کی جانب بڑھا تاکہ اسے یہاں سے لے جانے کے لیے کوئی راستہ دیکھ سکے اور کوئی انتظام کر سکے۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ آج وہ گھر پر اکیلی تھی۔ صدیقی مینشن میں اس وقت صرف وہی اور گارڈز ہی تھے، جبکہ ایک ملازمہ اماں بھی جو وہیں رہتی تھی، مگر ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، کیونکہ وہ نیند کی گولی کھا کر سوتی۔ حنزلہ درانی ابھی پلٹا ہی تھا جب اچانک وہ لڑکی تکیہ پکڑے اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ میری جان لوگے تم؟ ہاں میری!
वो झांसी की रानी बनी बुरी तरह इस पर तकिए बरसा रही थी, जिनका हंसला दुरानी पर कोई खास असर ना हुआ था। पहले वो इस अचानक हमले पर बौखलाया जरूर था, मगर फिर संभल गया। इसके बाजू मोड़कर इसकी कमर से लगाते हुए इसे काबू कर गया था। आह, छोड़ो मुझे, बुज़दिल इंसान, हाथ छोड़ो मेरे, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। वो अपने आप को छुड़वाने की सही करते इसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी, जबकि हंसला दुरानी अब गुस्से में आ गया था। इस लड़की का उछलना कूदना इसके माथे पर बल डाल गया था। तभी वो इसके दोनों हाथ एक ही कलाई में पकड़ते दूसरे हाथ से इसकी कनपटी पर गन रख गया। एकदम खामोश। अगर अब तुम्हारे मुंह से सांस की आवाज भी निकली तो सच में तुम्हें लाश में बदल दूंगा। हंसला दुरानी करख्त लहजे में बोला तो अलाया एकदम से सांस रोक गई थी। वो एक गैर मर्द के सीने से लगी खड़ी थी। इसका लम्स महसूस करते ही इसके पूरे वजूद पर कपकपी तारी हुई थी, जो हंसला दुरानी ने भी बखूबी महसूस की थी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। मेरे डैड को पता चला ना तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अलाया ने खुद की घबराहट छुपाते इसे एक मर्तबा फिर से अपने डैड की धमकी दी थी। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, मैं तो डर गया। हंसला दुरानी इसी के अंदाज में बोला था, जब अलाया ने अपने पाँव से इसके टांग पर वार किया। आह, डैम इट, पागल लड़की, तुम्हारी तो मैं। हंसला दुरानी अपना घुटना पकड़े गुस्से से दहाड़ा और अगले ही लम्हे खतरनाक तेवर लिए इसकी जानिब बढ़ा। इसने अलाया को पकड़ते गन से अलाया के सर के पिछले हिस्से पर जर्ब लगाई थी। अलाया की आंखों के सामने तारे नाच गए और अब वो सचमुच बेहोश, अपने होशो हवास से बेगाना होते जमीन बोस हुई थी। हंसला दुरानी ने इस मर्तबा इसे सहारा देने की कोशिश नहीं की थी। गाड़ी पिछले गेट के साथ लगाओ। हंसला दुरानी ने गन जेब में रखते फोन निकालकर किसी को कॉल करते कहा, और फिर अलाया के बेहोश वजूद को उठाकर कंधे पर डालते वो सिद्दीकी मेंशन से निकल गया था। जुनेद साहब, इसके दोस्तों को कॉल करें और पता करें कि मेरा बच्चा कहाँ है। वो तो कभी यूं घर से बाहर नहीं रहा, और आज तीसरा दिन है इसकी कोई खबर नहीं है। कहीं खुदा न खास्ते से कुछ हो न गया हो। नरमीन बेगम जुनेद साहब के पास आते बोली, जो पुरसुकून से बैठे हुए थे। नरमीन बेगम की बात सुन इनके माथे पर बल पड़े। अच्छा है अगर कुछ हो गया हो तो। मैं तो कहता हूँ कल का होता आज ही हो जाए। जुनेद साहब सख्त गुस्से से बोले तो नरमीन बेगम लबों पर हाथ रख गई। ऐसा मत कहें, वो बेटा है आपका, आपकी औलाद है, आप इस कदर संगल कैसे हो सकते। नरमीन बेगम भराई हुई आवाज में बोली, इसी बात का तो अफसोस है कि वो मेरा बेटा है। काश कि वो मेरा बेटा ना होता तो अपने हाथों से मैं उसकी जान ले लेता। ऐसी औलाद के होने से बे औलाद होना ही अच्छा है। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने मुझे। जुनैद साहब के लहजे में अब बेहिसी भी शामिल हो गई थी। अपनी बात मुकम्मल करते वो उठ खड़े हुए थे और लंबे लंबे डग भरते वहां से चले गए थे, जबकि नरमीन बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे थे। इनका जवान जहान बेटा पिछले 2 दिन से घर से गायब था। इन्हें डर था कि जवान फोन गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। या अल्लाह, मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। इन्होंने रोते रोते जेरे लब दुआ की थी। सरदार, वो छोकरा कॉल नहीं उठा रहा। हमारी तो खैर छोड़ें, इसने तो आपके नंबर से की गई कॉल भी नहीं उठाई। नसीम उर्फ बिल्लू सरदार आरिफ, जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, इसके सामने खड़ा कह रहा था, जबकि सरदार आरिफ के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं। वो एक 55 साला बूढ़ा आदमी था, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें और बड़े बड़े बाल इसे शक्ल से ही कोई बदमाश जाहिर कर रहे थे। फिर से इसका नंबर मिला, सरदार आरिफ ने कुछ सोचते कहा तो बिल्लू ने मुंह बनाते फिर से हंसला दुरानी का नंबर मिलाया था। मगर हर बार की तरह इस बार भी जवाब निदारद था। कॉल इस मर्तबा भी नहीं उठाई गई। देख लें सरदार, मैंने पहले ही कहा था कि इस कल के आए छोकरे पर भरोसा करना ठीक नहीं है। लाओ बाली सा छोकरा है, मगर आप इसकी जिसामत से मुतासिर हो गए। देख लिया नतीजा। अगर इसकी जगह मैं या अपना कोई और बंदा गया होता तो इस वक्त वो छोकरी आपके बिस्तर पर होती और इसका बाप आपके कदमों में। बिल्लू ने तनफ्फुर से कहते जहर उगला था। हंजला दुरानी से वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं था।
کیونکہ جب سے وہ آیا تھا تب سے سردار عارف کے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کے ہوتے بلو کو اپنا پتا صاف کٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تبھی اس وقت اس کی غیر موجودگی کا اس نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کا باپ تو میرے قدموں میں آئے گا ہی بلو۔ اس کو گھٹنوں کے بل اپنے سامنے نہ لایا تو میرا نام سردار عارف نہیں۔ بہرحال تم اس چھوکرے کا پتہ کرتے رہو، سردار عارف نے کہا۔ تبھی اڈے کا دروازہ کھلا اور دھول اڑاتی سیاہ پراڈو بجلی کی سی تیزی سے آ کر سردار عارف کے قدموں میں رکی تھی، جبکہ بلو نے بروقت پیچھے ہٹتے اپنی جان بچائی تھی، وگرنہ اب تک اس کی چٹنی بن چکی ہوتی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور حنظلہ درانی چھلانگ لگاتے ایک ادا سے باہر نکلا تھا۔ بلیک جینز کے اوپر بلیک ہی شرٹ پہنے، بالوں کی ترتیب بکھری سی تھی، آستینوں کو کوہنیوں تک موڑا گیا تھا، پیروں میں اسپورٹس شوز تھے، ماتھے پر بندھا رومال اور ماسک، گلے میں پڑے لوہے کی چین، بازوؤں پر لوہے کے کڑے اور انگلیوں میں موجود انگوٹھیاں۔ اس وقت وہ اچھا خاصا لوفر اور غنڈا لگ رہا تھا۔ شرٹ کے اگلے 3 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا چوڑا سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ یہ لیں سردار، آپ کا حکم پورا ہوا، آ گئی یہ آفت کی پرکالہ۔ حنظلہ درانی نے ببل چباتے انگلی پر پراڈو کی چابی گھماتے کہا، اور پھر چابی بلو کی طرف اچھالی تھی جو سیدھا اس کی ناک پر جا لگی۔ تیری تو بلو غصے سے اس کی جانب بڑھا، جب سردار عارف نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور ستائشی نظروں سے حنظلہ درانی کو دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہ ضرور کر لو گے، شاباش، تم نے اپنا آپ ثابت کر دیا۔ اب اس چھوکری کو میرے بستر پر پہنچاؤ ذرا، میں اس گلاب کلی کا نشہ چکھوں، اور پھر اس کے باپ کے ساتھ کوئی گفت و شنید کی جائے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بے ہوش پڑی عالیہ کا معصوم چہرے کو دیکھتے سردار عارف خباثت سے بولا، تو بلو نے بھی کمینہ سا قہقہ لگایا تھا، جبکہ حنظلہ کو یکدم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ لیکن سردار، یہ لڑکی آپ کے بستر پر کیسے جا سکتی ہے؟ حنظلہ کا سوال کافی غیر متوقع تھا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ سردار عارف بولا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جو کمینی خوشی تھی وہ حنظلہ درانے کو صاف نظر آ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اسے صرف اس کے باپ کو بلیک میل کرنے کے لیے اغوا کرنا ہے۔ اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہوا ہے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کہیں بنتی بات نہ بگڑ جائے۔ حنظلہ درانی نے فوراً سے اپنے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے کہا تھا، وگرنہ سردار کی بات سن اس کے غصے کا گراف کسی جگہ جا پہنچتا۔ اس نے بہت محتاط طریقے سے بات کی تھی۔ او چھوکرے، تو ہمیں نہ سکھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، سردار تجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر وہ اس کلی کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو تیرے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے؟ مانا کیا خوبصورت ہے، مگر سردار سے پہلے تو ہمیں نہیں مل سکتی۔ آج کی رات اسے سردار کے بستر پر رہنے دے، پھر دوسرا نہیں تو تیسرا نمبر تو لگا لینا۔ آخر تو نے اتنی بہادری کا کام کیا ہے، ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں تیرے لیے۔ بلو ہوش زدہ لہجے میں کہتے سردار کے پاس جا کھڑا ہوا تھا، اور پھر دونوں نے مل کر ایک بے ہنگم اور مکروہ قہقہ لگایا، جس پر حنظلہ درانی مارے غصے کے مٹھیاں بھیج گیا۔ ضبط کے مارے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس کا اس سے کوئی تعلق تھا۔ وہ تو انہی کے کہنے پر اسے اغوا کر کے لایا تھا، بدلے میں اسے اس کے منہ مانگی قیمت دی گئی تھی، مگر اب اس لڑکی کے بارے میں ان دونوں کے گھٹیا ارادے جان کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر اسے یہ سب بے حد برا لگ رہا تھا۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ جبران صدیقی ایک مشہور سیاست دان تھے، اور ان کی کافی ڈھاک بھی تھی۔ ان کی اہلیہ چند سال پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، جبکہ ان کی ایک ہی اکلوتی اولاد تھی، 21 سالہ علایا جبران، جس میں ان کی جان بستی تھی۔ سردار عارف بہت بڑا گینگسٹر تھا اور ہر برے کام اور کالے دھندے میں ملوث تھا، مگر اب تک کوئی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال پایا تھا۔ وہ پیسے کے زور پر جو چاہتا تھا وہ کر لیتا تھا، لیکن اب اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے جبران صدیقی۔ سردار عارف ایک خاص علاقے میں اپنے بھائی کو نشست دلوانا چاہتا تھا، لیکن جبران صدیقی ایسا نہیں ہونے دے رہے تھے۔ تبھی اس نے علایا کو اغوا کروایا تھا، مگر اس کی خوبصورتی اور بے داغ حسن دیکھ کر اس میں ہوس جاگ اٹھی تھی۔
चलो निकालो इसे गाड़ी से और ऊपर ले आओ। हंसला को लब नीचे खड़े देख सरदार आरिफ ने हुक्म दिया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। लेकिन सरदार, मैं कह रहा था कि आप एक मर्तबा फिर सोच लेते तो। हंसला ने कहा था। वो किसी भी तरह अब इस लड़के को यहाँ से निकालना चाहता था। इसके दिल की कैफियत अजीब सी हो रही थी। इसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि इसने इस लड़की को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ए छोकरे, मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। अगर तुझसे ये काम नहीं हो रहा तो हट जा। बिल्लू खुद उठा ले आएगा इस बुलबुल को। तुझे जो काम कहा था तूने कर दिया, अब चला जा यहाँ से। कोई और काम हुआ तो मैं बुला लूंगा तुझे। अब की बार सरदार आरिफ ने कुछ गुस्से से कहा, जिस पर हंसला दुरानी माथा मसल कर रह गया। फिर बोला, नहीं सरदार, मैं तो बस यूं ही। आप जाएं कमरे में, मैं इसे लेकर आता हूँ। हंसला ने खुशामदी लहजे में कहा और फिर अपने कदम गाड़ी की जानिब बढ़ाए। वो नहीं चाहता था कि बिल्लू इस लड़की को छुए। इसके नरम बेहोश वजूद को बाहों में भरते वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। जब अगले ही लम्हे ठिठक कर रुका। सरदार आलिफ और बिल्लू तेजी से भागते नीचे आ रहे थे। वो बहुत हवास बाख्ता थे और इनके चेहरों के रंग उड़े हुए थे। क्या हुआ सरदार? हंसला ने एकदम पूछा। एक इमरजेंसी हो गई है। ऐसा करो, तुम इस लड़की को अंदर ले जाकर बांध दो और हाँ, मेरी वापसी तक इसका खास ख्याल रखना और कड़ी नजर रखना इस पर। ये सिर्फ शक्ल से ही मासूम नजर आती है। सरदार आरिफ ने उजलत भरे लहजे में कहा था, क्योंकि इससे पहले भी वो 3-4 बार अलाया को अगवा करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार अलाया ने इसे नाको चने चबा दिए थे। सरदार ये अकेला कैसे संभालेगा? आप कहें तो मैं भी रुक जाऊं? बिल्लू अपनी गीली जबान होठों पर फेरते बोला तो सरदार आरिफ ने ऐसे घूरा था। इसके लिए ये काफी है, तुम इधर मेरे साथ मरो। फोन के रिंगटोन बजने पर सरदार आरिफ ने गुस्से से कहा और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते वहां से निकल गए। अलबत्ता इनके जाते ही अड्डे पर काफी सारे बंदे आ गए थे जो सरदार आरिफ के ही आदमी थे। हंसुला दुरानी अलाया को लेते एक दूसरे कमरे में आया और इसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। खुद सिगरेट सुलगाते लबों में दबाई और गहरा कश लेते धुआं हवा में छोड़ा था। नजरें भटक भटक कर इस मासूम चेहरे पर जा रही थीं और वो ये सोचने लगा था कि इसे यहाँ से कैसे निकाले। इतने लोगों की मौजूदगी में तो वो इसे यहाँ से बाहर हरगिज नहीं निकाल सकता था। ए लड़की, हश, हश, होश में आओ। हे, तुम सुन रही हो? हे, तुम सुन रही हो मुझे? कुछ सोचते इसके सामने बैठते हंसला इसका चेहरा थपथपाने लगा था और साथ ही हल्की सी आवाज में से पुकारते होश में लाने की कोशिश करने लगा। मगर अलाया टस से मस ना हुई थी। ये होश में क्यों नहीं आ रही? क्या मैंने ज्यादा जोर की मार दी थी? कहीं मरवर तो नहीं गई? हंसला ने सोचा और इसके करीब होते इसकी सांस महसूस करने लगा था कि जब ही मुंह पर पड़ने वाले मुक्के से बेअख्तियार पीछे की तरफ लड़खड़ाया था। सामने देखा तो अलाया अपनी हल्की कत्थई आंखें खोले से घूर रही थी। कौन हो तुम और कहाँ लाए हो मुझे? वो अनजान जगह को देखते बोली थी। इसके लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। देखो, मेरी बात सुनो। हंसला फिर से इसके करीब होते कहने लगा, जब इसने एक मर्तबा फिर हंसला के मुंह पर पंच मारा था, जिसने इसके 14 तबक रोशन कर दिए हैं। इसे वो मासूम लड़की समझ रहा था। वो कुर्सी से उठते एक मर्तबा फिर इस पर वार करने लगी। जब हंसला ने इसकी कोशिश नाकाम करते इसे वापस कुर्सी पर गिराया था, तभी शोर सुनते और लोग भी अंदर आए थे। अलाया बुरी तरह मचल रही थी और जो जो सामने आ रहा था इस पर वार किए जा रही थी। अंजला एक तरफ खड़ा दांत पीसते हुए इस लड़की को देख रहा था, जो मर्दों से यूं लड़ रही थी जैसे कि गेंद बैट खेल रही हो। हंजला दुरानी को इस पर गुस्सा चढ़ने लगा था। थोड़ी ही देर में वो लड़की इन्हें नाको चने चबा चुकी थी। हंजला गुस्से से दांत पीसते आगे बढ़ा और इसे काबू करते कुर्सी पर फेंका था। रस्सी लाओ, एक आदमी से गरजते हुए कहकर वो अलाया की तरफ मुतवज्जा होते इसका मुंह दबोच गया। अगर अब तुमने कोई हरकत की तो आई स्वेर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके चेहरे पर झुकते हंसला ने कदरे सर्द लहजे में सरगोशी की तो वह एक पल के लिए अलाया के पूरे वजूद में कपकपी दौड़ गई। हंसला ने इसे रस्सी से इसे कस कर कुर्सी से बांध दिया था।
इस दौरान वो हंसला के बाजू पर 2 मर्तबा अपने दांत गाड़ चुकी थी। वो अब पीछे होकर बैठा जख्म का जायजा लेने लगा था। तुम जाहिल इंसान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। अलाया चीखी थी। इसके चीखने पर हंसला को कोफ्त हुई थी, पर वो इसे नजरअंदाज करता सिगरेट सुलगा कर लबों में दबा गया। वो मुसलसल चीखने लगी थी और हंसला दुरानी की बर्दाश्त अब जवाब देने लगी थी। वो गुस्से से उठकर इसकी तरफ आया था और गुस्से से इसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। अलाया साख्त रह गई, जबकि वो खुद भी हैरान हुआ था। यह हरकत इससे बेख्तियारी में सरजद हुई थी, लेकिन अलाया पर काम कर गई। "म- मुझे जाने दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे।" वो अब मिन्नतों पर उतर आई थी। हंसला दुरानी ने घूर कर इसे देखा था, लेकिन इसकी किसी बात का जवाब न दिया। वो बेबसी से रोने लगी थी जब हंसला ने इसके करीब आया। बात सुनो मेरी गौर से, अगर यहाँ से निकलना चाहती हो तो। हंसला ने इधर उधर देखते मोहतात लहजे में कहा, तो अलाया ने तेजी से सर इस्बात में हिलाया। मैं तुम्हारे हाथ पैर खोल कर इस कमरे से बाहर जाऊंगा। तुम ये गन अपने पास रखना और यहाँ से बाहर निकल जाना। कोई सामने आया तो इस गन का इस्तेमाल कर लेना। यकीनन तुम इसका इस्तेमाल जानती होगी। यहाँ से दाईं तरफ 20 कदमों के फासले पर एक बड़ा दरख्त है, वहां रुककर मेरा इंतजार करना। अगर मैं 10 मिनट में आ गया तो ठीक है, वरना यहाँ से भाग जाना। हंसला ने सरगोशी नुमा आवाज में इसे समझाते हुए कहा, तो अलाया ने आईब्रो उचकाए से देखा था। कैसा किडनैपर था जो खुद ही किडनैप करके अब बगैर कुछ लिए दिए इसे छोड़ भी रहा था। तुम तुम छछुंदर कहीं के, एक मर्तबा तुम मुझे निकालो यहाँ से, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। इस गन की पहली गोली तुम पर ही चलाऊंगी, देखना तुम। अलाया इसे देखते दिल ही दिल में इससे मुखातिब हुई थी। फिर कुछ देर बाद हंजला ने इसके हाथ पैर खोले और गन इसे देते खुद कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद अलाया 5 मिनट तक रुकी और फिर उठते बाहर भागी थी। सबने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो गन दिखाते वहां से बच निकलने में कामयाब हो गई थी। दरख्त के पास जाते इसने 10 मिनट तक इसका इंतजार किया था, मगर जब वो नहीं आया तो वो वहां से निकल आई थी। जब वो घर पहुंची तो सूरज चढ़ चुका था, जबकि लाउंज में टहलते जिब्रान सिद्दीकी इसे देख फौरन इसकी तरफ लपके थे। अलाया, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा था, मगर तुम फोन भी घर पर ही छोड़कर गई थी। ये क्या तरीका है? वो इसे बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछने लगे और वो इनके बाजुओं में समाती शिद्दत से रोने लगी और फिर इन्हें सारी बात बता दी, सिवाय हंजला दुरानी की मदद वाली बात के। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी मालूमात निकलवाता हूँ, वो नहीं बचेगा। तुम ये बताओ कि अगर वो सामने आ गया तो तुम इसे पहचान लोगी क्या? जिब्रान साहब ने पूछा तो अलाया का सर खुद ब खुद नफी में हिला था। हालांकि वो आराम से इसे पहचान सकती थी। जाओ रेस्ट करो। इसे कमरे में भेजकर वो फोन में मसरूफ हो गए थे, जबकि वो मरे मरे कदमों से चलती कमरे में आई थी। काफी देर आईने के सामने खड़ी अपने अक्स को देखती रही और फिर फ्रेश होने के बाद सोने के लिए लेट गई। आंखें बंद करते ही इसकी आंखों के सामने हंसला दुरानी का चेहरा आया था। वो पट से आंखें खोल गई। ये छछुंदर मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है? दोबारा अगर मिला ना, छोड़ूंगी नहीं इसे। इसने इसे सोचते खुद कलामी की थी। दिमाग कह रहा था कि जिब्रान सिद्दीकी को बता दे कि वो इसे पहचान लेगी, मगर दिल मुसलसल इस बात की नफी कर रहा था। वो खुद अपनी कैफियत से अनजान थी। दिन गुजरते गए थे। जिब्रान सिद्दीकी अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस मामले में अलाया इनकी कोई मदद नहीं कर रही थी, जिसके बायस इन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हाय, कैसी हो? वो अपने दोस्तों के साथ कैफे आई थी जब इस आवाज पर पलटी। मुड़कर देखा तो हंसला दुरानी इसे ही देख रहा था। तुम तुम यहाँ? अलाया ने इधर उधर देखते पूछा। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? हंसला दुरानी ने पूछा और मजे से कुर्सी खींच कर बैठ गया। तुम तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उठो यहाँ से। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ लड़कियां बैठी हैं? वो इसकी इस हरकत पर बुरी तरह इस पर भड़की थी। तो क्या हुआ, लड़कियां बैठी हैं तो मैं कौन सा किसी की गोद में बैठा हूँ?
हंजला दुरानी ने कहते इसके सामने से कॉफी का कप उठाया था। इससे पहले कि वो इसको मुंह लगाता, अलाया तेजी से इसके हाथ से कप छीन चुकी थी। तुम दो नंबर इंसान यहाँ आकर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। फौरन से पहले उठो यहाँ से। अलाया ने बिना सोचे समझे सबके सामने इसकी बेइज्जती कर दी, जिस पर हंजला दुरानी की रगें मारे गुस्से के तन गईं। वो तो बस यूं ही इसे देख इसे जरा सा तंग करने आया था। अलाया के ऐसे कहने पर वो तेजी से उठता वहां से निकल गया था। अलाया, ये हीरो कौन था? इसके एक दोस्त ने पूछा। हीरो नहीं, गुंडा है ये। अलाया तनफ्फुर से बोली। ऐसे तो ना कहो यार, कितना हैंडसम और डैशिंग है, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह। वैसे तुमने इसकी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, ऐसे तुम्हें कुछ कहा तो नहीं था। इसके दोस्त ने इसे एहसास दिलाते हुए कहा, लेकिन अलाया ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। मगर बाद में इसे एहसास हुआ था कि इसका रवैया वाकई गलत था। ओए, रुको, बात सुनो। काफी दिनों बाद एक रोज वो मार्केट आई थी, जब इसकी नजर हंसला पर पड़ी थी। वो फोन कान से लगाए तेजी से पार्किंग की तरफ जा रहा था, जब अलाया तेजी से इसके सामने आई थी। क्या मसला है? हटो सामने से। हंसला दुरानी पहले इसे सामने देख हैरान हुआ, मगर फिर वो दिन याद आते ही इसके माथे पर बल पड़े और वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम थोड़ी देर बैठकर मेरी बात सुन सकते हो? अलाया ने कहा। इसका लहजा आज ही अक्सर बदला हुआ था। हंसला ने देखा था वो काफी शर्मिंदा लग रही थी। मेरे पास वक्त नहीं है। हंसला ने एक नजर घड़ी को देखते रूखे से लहजे में कहा। क्यों, तुम्हारे कौन से बिजनेस चल रहे हैं जो तुम्हारे पास वक्त नहीं? क्या फिर किसी को अगवा करने जाना है? अलाया ने तेजी से कहते हुए जबान दांतों तले दबाई थी। वो जल्दबाजी में फिर से गलत कह चुकी थी, जबकि इसके बाद सुनते हंसला के माथे पर बल पड़े। मेरे बिजनेस चल रहे हो या नहीं, तुम्हें इस काम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखो और दोबारा मेरे सामने आने की जरूरत नहीं। वो जिसका मूड पहले से ही खराब था, अलाया की बात पर मजीद बिगड़ा था। इसने अलाया की एक बात के बदले से 10 सुना दी थी। इसका लहजा इंतहाई करख्त था। ओ हेलो मिस्टर, ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो इस रोज के लिए तुमसे माफी मांगने आई थी, मगर तुम इस काबिल ही नहीं हो। अलाया ने नागवारी से कहा था। एक तो वो इस इंसान से सॉरी करने आई थी, और ये था कि इसकी बात सुनने के बजाय इसे ही सुना रहा था। हंसला दुरानी ने फोन जेब में रखा और फिर अलाया को समझने का मौका दिए बगैर इसको एक झटके से पीछे खड़ी गाड़ी से लगा चुका था। कंधे पर गिरफ्त मजबूत की थी। मैं किस काबिल हूँ, किस काबिल नहीं हूँ, ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? जहाँ तक रही बात माफी की, तो मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। अपनी माफी अपने पास रखो। तुम जैसी अमीरजादियों को अच्छे से जानता हूँ मैं। यकीनन तुमने मुझसे कोई काम निकलवाना होगा, तभी मुझे मुंह लगा रही, वगरना तुम जैसियों को हम जैसे कब नजर आते हैं? और अब इसकी आंखों में आंखें डाले इसे घूरते हुए तंजिया लहजे में कह रहा था, जबकि इसकी सोच पर अलाया का दिल चाहा था कि इस शख्स का मुंह नोच ले, जो इसके बारे में ऐसा कुछ सोच रहा था। काम? और वो भी तुमसे? तुम जैसे लड़कियों को अगवा करने वाले गुंडे से मुझे भला क्या काम हो सकता है? तुम्हारे जैसे तो मैं नौकर भी ना रखूं। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि मुझे यानी अलाया जिब्रान सिद्दीकी को तुमसे कोई काम हो सकता है? अभी इतना भी बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अब तक मैंने पुलिस और डैड को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, वरना तुम अभी यहाँ मुझे आंखें दिखाने के बजाय जेल में पड़े सड़ रहे होते और अपनी किस्मत को रो रहे होते। खुद को छुड़वाते अब की बार अलाया ने भी एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा था। तो मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो मिस अलाया जिब्रान सिद्दीकी। मैं ना तुमसे डरता हूँ, ना तुम्हारे डैड से, और ना ही पुलिस से। तुमने जिसको बताना है बताओ, आई डोंट केयर। वो सख्त लहजे में कहते इसे हक्का बक्का छोड़े वहां से जा चुका था, जबकि अलाया हैरत से इसे जाते हुए देखती रही थी। 6 महीने गुजर चुके थे। अलाया का दोबारा हंजला दुरानी से सामना नहीं हुआ था। वो यूनी से निकली तो कुछ आगे आकर अचानक इसकी गाड़ी एक झटके से रुकी थी। क्या हुआ चचा, गाड़ी क्यों रोक दी? अलाया ने खुद को संभालते हुए पूछा। बेटा वो सामने।
ड्राइवर चचा ने घबराते हुए लहजे में कहते इशारा किया तो अलाया ने इनकी नजरों के ताक़ुब में देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझती तभी कुछ मसला अफराद ने उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरा था और अगले ही लम्हे अलाया के मुंह से दिलखराश चीख बुलंद हुई थी। इन लोगों ने आनन फानन गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइवर चचा को गोलियों से भून डाला था। भाग जाओ बेटा, ड्राइवर चचा ने टूटे फूटे अल्फाज में कहा और फिर इनकी गर्दन एक तरफ लड़क गई। अलाया तो साख्त रह गई थी। इसका वजूद सुन्न हो चुका था। सरदार आरिफ गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ आया था और इसकी तरफ का दरवाजा खोलते इसे खींचकर बाहर निकाला था। वो किसी बेजान चीज के मानंद इसके साथ खींचे चली गई थी। इसको देखकर लग रहा था कि जैसे वो अपने हवास खो चुकी थी। इसकी नजरें अब तक ड्राइवर चचा के खून से लथपथ वजूद पर थीं। अलाया जिब्रान सिद्दीकी के हवास इस वक्त बिल्कुल काम करना छोड़ चुके थे। सरदार आरिफ ने इसे लाकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर पटका था और फिर गाड़ी में बैठते वो सब वहां से निकल गई थी। अलाया रास्ते में ही होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। इसे होश आया तो इसने खुद को एक नरम गरम बिस्तर पर पाया था। आंखें खोलकर देखा तो सामने ही एक बड़ी बड़ी मूंछों और बड़े बालों वाला बदसूरत आदमी बैठा हुआ था, जिसकी शक्ल से ही यूं लगता था कि जैसे फटकार बरस रही है। हाथों में सुगार दबा हुआ था जिसके वो गहरे कश ले रहा था। इसकी नजरें अलाया को अपने वजूद में उतरती महसूस हो रही थीं। वो मैच्योर लड़की थी, इतनी छोटी बच्ची तो ना थी जो इसकी नजरों का मफहूम न समझ पाती। इसकी हवस ज़दा नजरें खुद पर गड़ी देख वो एक झटके से उठ बैठी थी। उठ गई मेरी बुलबुल, बहुत इंतजार करवाया तुमने तो। इसे उठते देख सरदार आरिफ ने सुगार एश ट्रे में मसलते हुए कहा था और मायने खैज नजरों से इसकी तरफ देखते इसकी जानिब बढ़ा, जबकि इसे अपनी तरफ आती देख अलाया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। नहीं, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। अलाया पीछे खिसकती चीखी थी, जबकि इसकी आंखों में खौफ देख सरदार आरिफ की आंखें चमकी थी। वो होठों पर कमीनी मुस्कुराहट लिए इसके करीब जाने लगा था और हाथ बढ़ाते इसका दुपट्टा खींचकर दूर उछाला था। अलाया तेजी से बेड से नीचे उतरती दरवाजे की जानिब भागी थी, मगर दरवाजा लॉक था। खोलो, खोलो, कोई है? कोई इसे खोलो प्लीज, बचाओ, बचाओ। वो बुरी तरह से दरवाजा बजाते चीखने लगी थी जब सरदार आरिफ इसके करीब पहुंचा। ये सब कोशिश बेकार है मेरी जान, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, सरदार आरिफ ने कहते इसके कंधे पर हाथ रखा। अलाया बिदक कर इससे दूर हुई थी और अगले लम्हे न जाने इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि इसने सरदार आरिफ के मुंह पर थूक दिया। आह, तो तुम बाज नहीं आओगी है ना? कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें आसानी और नरमी से अपनाना चाहता था, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ, सरदार आरिफ ने अपना चेहरा साफ करते गुस्से से कहा और अगले ही लम्हे अलाया को खींचते बेड पर फेंका था। अलाया फौरन से पहले नीचे उतरी, लेकिन अगले ही लम्हे सरदार आरिफ ने इसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा था। अलाया को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया और अगले ही लम्हे वो हवास खोते जमीन बोस हुई थी। हंजला, तुम आ गए। कहाँ थे बेटा तुम? इतना अरसा कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। तुम्हें अपनी बुढ़ी माँ का जरा ख्याल नहीं आया? हमजा दुरानी पूरे 10 माह बाद घर में दाखिल हुआ तो जरमीन बेगम भागते इसके सीने से लगी थी। हंजला इनका छोटा बेटा था, लेकिन शुरू से ही हंजला की अपने बाबा से नहीं बनती थी। शुरू में इन्होंने इसके साथ जबरदस्ती करते इसको अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स और अपनी मर्जी की फील्ड रखवाई, फिर अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी और अपनी मर्जी की ही एकेडमी। फिर यूं ही वो हर काम में अपनी मर्जी चाहने लगे थे। हंसला पहले पहल तो जब्त करता था, मगर जब बात नौकरी और शादी की आई तो वह इनकी मर्जी पर बफर गया। वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, जबकि इसके बाबा चाहते थे कि वो इनकी तरह और अपने बड़े भाई की तरह बिजनेस संभाले। हंसला ने दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया और कहा कि अगर वो इसे पुलिस की नौकरी नहीं करने देंगे तो वो बिजनेस भी नहीं करेगा। वो पूरा पूरा दिन आवारा लड़कों की तरह घूमता रहता, जिससे इसके बाबा को गुस्सा चढ़ता था। वो इसे आवारा फिरते देखकर कुढ़ते रहते और रोज
घर में इन दोनों बाप बेटे के झगड़े होते थे। दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। कोई भी झुकने के लिए तैयार ना था। दोनों में अना कूट कूट कर भरी हुई थी। एक रोज यूं ही मामूल की तरह झगड़ा हुआ, लेकिन वो इतना बढ़ गया कि हंसला के बाबा ने इसे थप्पड़ मारते घर से निकल जाने का कह दिया। हंसला दुरानी उसी वक्त घर छोड़कर चला गया था और अब लौटा था। बस अम्मा, अब आ गया हूँ। अब कहीं नहीं जाऊंगा। आप ये बताएं कि आपके सड़ियल शौहर कहाँ हैं? मुझे घर से निकाल कर इनके जलते सीने पर ठंड पड़ी कि नहीं? माँ के सर पर लब रखते इसने इधर उधर देखते पूछा तो नरमीन बेगम ने इसे मसनूई घूरी से नवाजा। बाबा है वो तुम्हारे, नरमीन बेगम ने कहा। यही तो गलती हो गई आपसे। वो बोला तो नरमीन बेगम इसके इस कदर बेबाक बात पर शर्म से सुर्ख पड़ती इसके कमर पर धप लगा गई थी। इसे घर आए तीसरा रोज था। वह नरमीन बेगम के पास बैठा इनसे लाड उठवा रहा था जब इसको किसी की कॉल आई थी। कॉल सुनते ही इसके माथे पर शिकनों का जाल फैला और गुस्से से रगे तन गईं। तुम लोग तैयारी करो, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ये नहीं बचेगा आज। हंसला दुरानी गुस्से से कहते उठ खड़ा हुआ और फिर तेजी से घर से निकल गया। नरमीन बेगम इसे आवाजें देती रह गई थी। एक घंटे बाद वह सरदार आरिफ के खुफिया अड्डे पर थे। वो पुलिस यूनिफॉर्म में बेहद वजीह लग रहा था। दाएं कंधे पर एसपी हंसला दुरानी का नाम पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। वो इन 10 महीनों में पुलिस फोर्स ज्वाइन कर चुका था। इस वक्त वो भारी नफरी के साथ आया था। गुजरे वक्त में सरदार आरिफ का गुंडा बनकर वो इसके खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे कर चुका था। गो के अभी कुछ मजीद तहकीकात रहती थी, लेकिन अगर आज वो ना आता तो जानता था कि सरदार आरिफ इस लड़की को बर्बाद कर देगा। इसके इशारे पर इसकी टीम चारों तरफ फैल गई। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। जिस वक्त वो सरदार आरिफ के कमरे में पहुंचा तो वो लॉक था। इसने जोरदार लात मारते दरवाजा खोला था और अंदर दाखिल हुआ था। सरदार आरिफ जो अलाया पर झुका हुआ था एक झटके से पीछे हुआ था। आने वाले को देखकर इसकी आंखें हैरत से फैली थी, मगर यही वक्त इसकी हैरत दूर करने का नहीं था। सरदार आरिफ ने इस पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो फुर्ती से अपना आप बचा गया और फिर एक तवील झड़प के बाद आखिरकार सरदार आरिफ का एनकाउंटर करते ही बात बनी थी। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। शायद इसे खुद ही अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी। वो एरिया कवर कराते अलाया को लिए वहां से निकला और इसे सिद्दीकी मेंशन लाया था, जहां जिब्रान सिद्दीकी को अलाया की गुमशुदगी के बायस हार्ट अटैक हो गया था। लेकिन शुक्र था कि हार्ट अटैक माइनर था। वो चंद घंटे अस्पताल में रहने के बाद वापस आ चुके थे। अलाया को देखते इनकी जान में जान आई, मगर अलाया अभी तक बेहोश थी। रुको इंस्पेक्टर, वो जाने लगा जब जिब्रान सिद्दीकी ने इसे रोका। जी सर, वो मुअद्दब लहजे में कहता मुड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ताउम्र तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। वैसे तुम मुझे कहीं देखे देखे लग रहे हो। मेरा दोस्त था जुनेद दुरानी। न जाने पर क्यों, पर मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उसकी जैसी लग रही है। शायद मेरा वहम भी हो सकता है। जिब्रान साहब ने इसका शुक्रिया अदा करते कहा तो हंसला के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। ये आपका वहम नहीं है अंकल। वो माँ बदौलत बदकिस्मती से मेरे ही बाप हैं। हंसला ने कहा तो जिब्रान सिद्दीकी की आंखें बेयकीनी से फैली। फिर इन्होंने हंसला से जुनेद साहब का नंबर लेते इनसे बात की और इनका शुक्रिया अदा किया था। हंसला दुरानी की हिम्मत और कामयाबी के किस्से सुनाते वो बहुत पुरजोश थे, जबकि जुनेद साहब को एकदम अपने बेटे पर फख्र महसूस हुआ था। इनका सीना एकदम से चौड़ा हो गया था। अलाया चीखते हुए उठ बैठी थी, मगर खुद को जिब्रान सिद्दीकी के पास पाकर वो कुछ मुतमईन हुई थी। इसके पूछने पर जिब्रान सिद्दीकी ने इसे बताया था कि इनके दोस्त का बेटा इसे सही सलामत वहां से बचाकर ले आया था। अलाया ने खुदा का बहुत शुक्र अदा किया था, लेकिन इस वाकये के बाद वो बेहद खौफजदा हो चुकी थी। अलाया अपने कमरे में थी जब जिब्रान साहब इसके कमरे में आए थे। डैड, आप, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। वो एकदम सीधे होती बोली। नहीं, मुझे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं खुद आया। जिब्रान साहब सोफे पर बैठे बोले तो अलाया ने उलझते इन्हें देखा। अलाया, मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगी।
जिब्रान साहब ने तमहीद बांधना जरूरी समझा। जी डैड, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अलाया ने पूछा। तुम्हारे लिए मेरे दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है। लड़का बहुत अच्छा है, बल्कि वो सभी बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। तुम जानती हो कि मैं कभी कहाँ होता हूँ, कभी कहाँ। ऐसे में तुम्हारी प्रोटेक्शन की बहुत फिक्र होती है मुझे। अभी जो कुछ हुआ, इसके बाद तो मैं तुम्हारी तरफ से और भी फिक्रमंद हो गया हूँ। इसलिए तुम्हें महफूज हाथों में देना चाहता हूँ। उम्मीद है मेरी बेटी मेरी बात समझेगी। जिब्रान साहब ने कहते आखिर में उम्मीद भरी नजरों से इसे देखा था। वो जो खुद भी बेहद खौफजदा थी, सर झुकाते इन्हें अपनी रजामंदी दे गई थी। अगले ही रोज इसके मुतवक्का ससुराल वाले मंगनी करने पहुंच गए। लड़का खुद साथ नहीं आया था, सिर्फ माँ बाप और भाई भाभी आए थे। अलाया को इनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी थी। यूं भी इसे यकीन था कि इसके डैड इसके लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। शादी के लिए 10 दिन बाद की तारीख तय की गई थी। दोनों खानदान अमीर कबीर पैसे वाले थे, सो इनके लिए 10 दिन में तैयारी करना मुश्किल न था। जिब्रान साहब एक एक चीज अलाया से पूछ पूछ कर रहे थे। वो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी चीज में कोई कमी ना रहे। अलाया के ससुराल से आई गई चीजें भी एक से बढ़कर एक थी। अलाया तारीफ किए बगैर न रह सकी थी। फिर जब इसने सुना कि ये सब मौसूफ ने खुद खरीदा है तो वो दाद दिए बगैर न रह सकी। दिन गुजरते गए और शादी का रोज आ पहुंचा। अलाया धड़कते दिल के साथ अपने तमाम जुमला हुकूक एक अजनबी के नाम करती इसके साथ रुखसत हो गई थी। आतिशी रंग के लहंगे में मलबूस वो सजे सजाए कमरे और सजे हुए बेड पर बैठी आने वाले लम्हात को सोचकर परेशान हो रही थी। गो कि अभी तक इसने इसकी बहुत तारीफें सुनी थी, मगर फिर भी फितरी शर्मो हया और घबराहट आड़े आ रही थी। घुटके की आवाज पर वो झुका झुका हुआ सर मजीद झुकाकर बैठ गई थी, मगर जब काफी देर तक कोई हलचल महसूस ना हुई तो परेशान होते सर उठाकर देखा। कमरा खाली था, जबकि वॉशरूम का दरवाजा इसी लम्हे बंद हुआ था। तो क्या वो मुझसे मिले बगैर बात किए बगैर चला गया? अलाया ने सोचा और बेड ग्राउंड से टेक लगाते इसके वॉशरूम से निकलने का इंतजार करने लगी थी। इसी असना में इसकी आंख लग गई। उठो मेरे बिस्तर से। अपने करीब भारी गंभीर आवाज सुनते इसने आंखें खोली थी, मगर अगले ही लम्हे इसकी आंखें हैरत के बाइस फैल गईं। तुम गुंडे डाकू, तु, तुम मेरे शौहर? अलाया को समझ ही ना आई थी कि वो क्या कहे, जबकि इसके गुंडा कहने पर हंसला दुरानी के माथे पर बल पड़े। इसने जेब में हाथ डालते अपना सर्विस कार्ड निकालकर अलाया की हथेली पर रखा और इसे खींचकर बिस्तर से उतारते खुद बेड पर विराजमान हो गया। एसीपी हंजुला दुरानी पुलिस इंस्पेक्टर। यह अलाया को लगने वाला दूसरा झटका था। अगर सदमे से निकल आई हो तो लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है। जब काफी देर तक वो यूं ही खड़ी रही तो हंसला ने आंखों से हाथ उठाकर इसे देखते हुए कहा। अलाया ने गुस्से से इसका कार्ड नीचे पटका था। "त- तुम 2 नंबर इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की?" अलाया गुस्से के बाईस चिल्लाई थी, जब हंसला के माथे पर नागवारी से बल पड़े। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शौहर से कैसे बात करते हैं? हंसला उठकर बैठा था, जबकि अलाया ने हाथ मारते साइड टेबल से सारी चीजें नीचे गिराई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही थी। मिस अलाया, ये तुम्हारी इमारत नहीं, मेरा कमरा है, और इसकी एक एक चीज बहुत मेहनत से कमाई और बनाई गई है। हंसला ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा था, जबकि ये इशारा नीचे गिरी चीजों की तरफ था जिनमें से कुछ टूट गई थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अलाया ने गुस्से से कहा और हंसला की जानिब आई, जब अगले ही लम्हे हंसला इसे खींचकर बिस्तर पर गिराते इस पर काबिज हुआ था। इतना गुस्सा किस बात का है तुम्हें? मुझसे शादी होने पर या इस सरदार आरिफ से बच जाने पर? वैसा गलत ही किया मैंने तुम्हें इससे बचाकर। अच्छा था कि वो तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देता। हंसला ने गुस्से से कहा तो अलाया का वजूद कांप उठा था। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान! इसने चीख कर कहते हंसला के नीचे से निकलना चाहा था। जब इसकी मज़ाहमत देखते हंसला ने मजीद इस पर वजन डाला था और एक हाथ से इसका जबड़ा दबोचा था। मैं कोई तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ जो तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही हो। आज रात का वक्त है तुम्हारे पास, अपना रवैया दुरुस्त करो और तमीज से बात करना सीखो।
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ہرگز تمہاری یہ بدتمیزیاں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے منہ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے حنزلہ نے کہا اور پھر اسے آزاد کرتا کمرے سے نکل گیا۔ الایا حق دک سی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے گرم سیال بہنے لگا تھا۔ وہ وہیں روتے روتے سو گئی تھی۔ اگلی صبح خود پر کسی کا وزن محسوس کرتے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے دیکھا تو حنزلہ اسے باہوں کے حصار میں لیے سو رہا تھا۔ الایا نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد وجیح اور ہینڈسم تھا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھے گئی تھی۔ جب حنزلہ نے کروٹ بدلتے آنکھ کھول کر اسے دیکھا، اس کے دیکھنے پر وہ فوراً نگاہ جھکا گئی تھی، جبکہ صبح ہی صبح حنزلہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ ڈاکو تو میں تھا، مگر ڈاکہ تم ڈال رہی ہو، وہ بھی یوں چوری چوری۔ حنزلہ نے اس کے چوری چوری دیکھنے پر چوٹ کی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے وہ تکیہ اٹھا کر اسے مارتی واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ حنزلہ کی مسکراتی نظروں سے اس کا پیچھا کیا تھا، جبکہ وہ واش روم کا دروازہ بند کرتی اسے زیر لب کئی گالیوں سے نواز گئی تھی۔